आपको बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मौजूद हैं और आज बड़ा फैसला किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। दरअसल बिहार में हार के बाद मोदी सरकार एकदम से एक्शन में आ गई है और 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को आसान कर दिया गया है, जिसमें न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का क्षेत्र भी शामिल है, जहां 26% एफडीआई को बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। और अब उसी संदर्भ में जिस तरह से विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है मोदी सरकार की तरफ से, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मौजूद है वित्त मंत्री अरुण जेटली। बिहार में हार हुई और उसके बाद मोदी सरकार एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। विदेशी निवेश को लेकर एक बड़ा फैसला जो कि मोदी सरकार ने किया है। 15 क्षेत्रों में आपको बता दें एफडीआई के नियमों को आसान किया गया है, जिसमें न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का क्षेत्र भी शामिल है। 26% जो वर्तमान लिमिट है एफडीआई की, उसको बढ़ाकर 49% करने का फैसला किया गया है। और अब उन्हीं फैसलों को समझाने के लिए उसके पीछे सरकार की क्या सोच रही है और इससे किस तरह का फायदा होगा अर्थव्यवस्था को, इन तमाम चीजों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली किसी भी बल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। I'll just make a brief statement in English and then translate it in Hindi for the benefit of Hindi and the regional language channels. In the past year and a half, there has been a top priority emphasis for the government to ease the doing of business in India. As a result of which, a turnaround in India's ratings has come around. In the last month, two important international agencies, both the World Economic Forum and the World Bank, from a declining position in the ease of doing business in the last several years, have reversed the trend. And both of them have moved India up. We have always believed that the net impact of all the reforms being undertaken will actually push India much higher, or should have pushed India much higher, but hopefully some of them will be taken into consideration next year. It's being getting 40% on a year-to-year basis. Foreign direct investment is an additionality of resource. This additionality of resource is required if the cycle of economic activity has to go on. It's a hard fact that in the last few months, growth in India is being driven by public investment, some private investment, and an increased foreign direct investment. The revenue position so far, and yesterday the indirect revenues till the month of October, the figures were given to you, has significantly improved. And therefore our ability to enhance public investment is there. Our expenditure is going on planned lines, and we don't foresee any cuts being made to this proposed expenditure this year. We are hoping that as the
excise collections particularly indicate manufacturing would move up or is moving up, and that would restore some cycle as far as private investment is concerned. We still need a very large resource both for infrastructure, for new initiatives like Startup India, Skill India, Make in India. And as I said, foreign investment is certainly an important additionality of resource. Investors also prefer to invest in destinations where growth is picking up, returns seem likely, and where it is easy to do business. Today, a very important decision has been taken. The decision has been administratively pioneered by the Department of Industrial Policy and Promotion. They were in active consultation with the Ministry of Finance and the Prime Minister's office, as also other ministries which were concerned with each one of the sectors. And this decision impacts on reforming and liberalizing norms in 15 different sectors. The sectors are 15, but the investment points which are impacted by these 15 sectoral decisions are about 32. And I must say, to the credit of the DIPP, that they have at a very quick pace completed the consultation process and couldn't have found a better occasion to facilitate more money coming into the country than on the eve of the Diwali celebrations. The press note has already been issued, and a detailed note from the Department of DIPP explaining the detailed technicalities about the investment points where FDI has been liberalized. Now, if I can explain the nature of the liberalization which has taken place, in some areas sectoral caps have been enhanced. But more important than that, some outdated conditionalities which existed along with the sectoral caps have been either done away with or eased. Many more areas have been put into the automatic route. And several sectors are particularly going to get a significant benefit out of these substantive and procedural reforms which have been made. I think one of the most important reforms is in the construction sector. There had been a slowdown in the construction sector. Now that interest rates have started easing up, we hope the sector will pick up. For instance, there were conditionalities like limitations in terms of capital and area, lock-in periods,
Now, all these have been increasingly liberalized. There has been a liberalization in the carriage and the non-news segments as far as broadcasting is concerned. A lot of liberalization as far as the non-resident investment in India is to be made. If you need any clarification, Mr. Amitabh Kant, the Secretary of DIPP, is here with regard to each sector. He can give you the details. That is all I had to say in the opening. I'll just briefly, for the benefit of the Hindi channels, repeat the same in Hindi. पिछले एक महीने में भारत में व्यवसाय करना सरल हो, इसको लेकर एक देश की छवि बदली है। पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपनी रेटिंग्स में भारत का जो नंबर आता था उसका काफी सुधार किया है। हम लोग मानते हैं कि वो सुधार की संख्या और अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन शायद उनकी जो प्रक्रिया है उसके तहत अगले वर्ष वो ज्यादा उभर कर स्पष्ट सामने आएगी। पिछले एक वर्ष में देश में विदेशी निवेश 40% बढ़ा है और नए जो निवेश के केंद्र हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, उनमें तो ये माना जाता है कि भारत विश्व में सबसे आगे है निवेश को आकर्षित करने के लिए। इस देश को निवेश के लिए पूंजी की आवश्यकता है। जब निवेश और पूंजी होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, तो तभी है स्वाभाविक कि व्यवसाय बढ़ पाएंगे, रोजगार बढ़ पाएंगे और अवसर इस देश की जनता के लिए बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टार्टअप इंडिया में, मेक इन इंडिया में, स्किल इंडिया में, सबके लिए साधनों की जरूरत है। और आज परिस्थिति ऐसी है क्योंकि राजस्व की स्थिति इस साल सुधरी है और जो सार्वजनिक निवेश है, जो सरकारी निवेश है, उसकी संख्या हम लोग काफी बढ़ा रहे हैं। और उसके अतिरिक्त निजी निवेश में भी थोड़ा सा सुधार आया है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन उसमें अभी सुधरने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। विदेशी पूंजी के निवेश काफी बड़ा है और उसको और आगे आकर्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत दुनिया में तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है और विदेशों में निवेशक इस बात की तलाश में हैं कि किस अर्थव्यवस्था में ज्यादा पूंजी लगाई जाए। तो हमारे जो एफडीआई नॉर्म्स हैं, उस नीति का उदारीकरण हमने किया है, उसका लिबरलाइजेशन भी किया है। कहीं कैप्स बढ़ाए हैं, कहीं उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स हैं, उनको सरल किया है, कहीं जो कंडीशंस थी जो बड़ी पुरानी हो चुकी थी उनको हटाया है और कुल मिलाकर 15 क्षेत्रों को, 15 सेक्टर्स को प्रभावित किया इस निर्णय से, जिसमें से 32 निवेश के केंद्र ऐसे होंगे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स होंगे, जिनमें सुधार आएगा। ये जो पूरे क्षेत्र है, इनकी एक लिस्ट प्रेस रिलीज के अंदर आपको दी जा चुकी है। मुझे इतना ही कहना था। कोई इस पे कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं। श्री अमिताभ कांत डीआईपीपी विभाग के सेक्रेटरी हैं, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरीज भी यहां पर हैं। कोई अगर विषय पे जानकारी है तो बताइए। Sir, are today's reforms an indication by the government that it is not affected at all by Bihar courts? Is it a statement that the government is making? You see, a reform like this, the consultation process didn't start 48 hours ago.
But after all, you cover finance ministry regularly and you know the government procedures. Normally it takes months, if not more, to have interdepartmental consultations before such major decisions are taken. Along with the finance ministry itself, the discussions were held a few weeks earlier. With the Prime Minister's office, they were held a week earlier. So these discussions, these decisions are not born overnight. They are a part of a long consultation process. Sir, there have been talks about liberalization of FDI policy, of which one part we are seeing today. Is there more to come? Are there any more sectors which you feel that need to be liberalized further? I can tell you that reforms is always an ongoing process. There is no finishing line as far as reforms are concerned. So as and when the sectoral requirements so warrant, we'll certainly be reviewing any other sector. But before the budget, do we see any If journalists have some sector in mind, they can suggest to us. I am aware of one. In your paper, the reporters and the editorial policy is slightly different. देखिए, उसमें इस नीति को लेकर उसमें कोई बदलाव नहीं है आज की नीति में. आगे कोई संभावना? देखिए, मैं संभावनाओं में क्यों उलझूं? Let me go by the text of the decision today. Sir, so will all these reforms, will they need cabinet approval or they are executive decisions? You see, these decisions, after they are taken, they have been approved by the Prime Minister today, who has the special authority of the cabinet to make an approval. And obviously, after the approval is made by the Prime Minister, it goes for a post facto approval of the cabinet itself. So there are a large number of items which come up in the cabinet, which come up between two cabinet meetings, where the Prime Minister is empowered, and then they are ratified. For instance, a lot of inter-government memorandums, when the heads of governments are here, we enter into them because of the situation so requiring, and thereafter they are approved by the cabinet. How soon will you notify, sir? They have been notified today. How soon will the... Actually, a detailed press note has already been put on our website. It's available. Detailed press release has also been put on the... Right now it has been put on. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को और सरल बनाने के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली, और उन्होंने कहा कि इससे व्यापार को, विदेशी निवेश को आसान बनाने में मदद मिलेगी. विकास के लिए विदेशी निवेश का ये फैसला किया गया है, जहां पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, कृषि, इसके साथ ही रक्षा समेत 15 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी निवेश के जो नियम हैं उनको सरल किया गया है. न्यूज क्षेत्र की अगर बात करें तो जो खबरिया चैनल हैं उनमें 26% एफडीआई से बढ़ाकर उसको 50% किया गया है, और जो गैर खबरिया चैनल हैं उनमें ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की बात कही गई है, और उसको लेकर जो एक प्रेस रिलीज है वो बाकायदा दे दी गई है. एक साल में विदेशी निवेश 40% बढ़ा, ये कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने. और इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में जिस तरह की हार बीजेपी को मिली है उसके बाद आनन फानन में फैसला लिया गया है, तो इस पर भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह साफ किया कि एक हफ्ते तक प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ इस पर कंसल्टेशंस चली और उसके बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया है. यानी वित्त मंत्री ने साफ किया कि बिहार चुनाव की हार से इस फैसले का कोई लेना देना नहीं है. विदेशी कंपनियां, आपको बता दें, भारत में घर भी बनाएंगी, और वो ऐसे होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब तक ये था कि जो विदेशी निवेश है वो 5 साल के भीतर आए, लेकिन इस शर्त को अब हटा दिया गया है, यानी विदेशी निवेश 5 साल के बाद भी आ सकता है. तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि साल भर के भीतर 40% विदेशी निवेश एफडीआई जो है उसमें इजाफा हुआ है. लेकिन अभी अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं, जैसे वो स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इसके साथ स्किल इंडिया हो, इन तमाम चीजों के लिए संसाधनों की जरूरत है, और इन संसाधनों में विदेशी निवेश भी बेहद अहम भूमिका निभाता है. और यही वजह है कि वित्त मंत्री की तरफ से यह साफ किया गया कि रक्षा समेत
15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश के नियमों को सरल किया गया है। इसमें रक्षा का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग है। इसके अलावा आपको बता दें सिविल एविएशन है, सिंगल ब्रांड रिटेल भी इसमें शामिल है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान उनसे यह भी पूछा गया कि मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, तो इस पे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि फिलहाल मल्टी ब्रांड रिटेल को लेकर पुरानी नीति जारी रहेगी, लेकिन जो एक साल में विदेशी निवेश 40% बढ़ा है उसे और गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 15 क्षेत्र, जिनमें रक्षा क्षेत्र, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, कृषि, माइनिंग, ये तमाम क्षेत्र शामिल हैं। इसमें विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है, नियम सरल किए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार का ये नियम, ये जो विदेशी निवेश के नियम है, इनको और सरल बनाया गया है, ये अपने आप में कितना अहम है, कितना ज्यादा विकास हो पाएगा इससे? दो चीजों को आपको देखना होगा। सबसे पहले तो ये है कि बिहार चुनाव के नतीजे के 48 घंटे के भीतर एक बड़ा फैसला, जिसके जरिए ये संकेत देने की, ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी नहीं होने देगी। दूसरा जो इसका संकेत है, दूसरा जो मैसेज है, वो ये है कि मेक इन इंडिया के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा सरकार अपने बूते पर या केवल घरेलू निजी कंपनियों से नहीं हो सकता। वहां पर आपको विदेशी कंपनियों का भी, विदेशी निवेशकों का भी पैसा चाहिए। अगर आप एक खास प्रोविजन पे देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में जो ई कॉमर्स के लिए खोल दिया गया है, अभी तक की व्यवस्था ये है कि अगर आप अपना माल वेबसाइट पर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त ये होती थी कि वो माल यहाँ पर बनते रहना चाहिए था। वहां पर जो विदेशी जो ई कॉमर्स कंपनीज थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इनकरेज नहीं हो पाती थी। अब उनके लिए एक रास्ता खुल गया है कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकेंगी। तो दो मैसेज को अगर आप देखते हुए इस नतीजे पे आप पहुंच सकते हैं कि रोजगार को बढ़ावा देना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, मैन्युफैक्चरिंग की गति और तेज हो, वो इस फैसले के जरिए है। तो कुल मिलाकर के अगर विदेशी निवेश को देखें, घरेलू निवेश के साथ विदेशी निवेश बढ़े, इसकी कोशिश इस फैसले के जरिए की जा रही है। शुक्रिया आपका शिशिर इस जानकारी के लिए। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह साफ किया कि 15 क्षेत्र, जिसमें रक्षा का, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का क्षेत्र भी शामिल है, इसमें एफडीआई के नियम जो है उनको और सरल किया गया है। विदेशी कंपनियां भारत में घर बनाने यानी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अब बेहतर भूमिका निभाएंगी, विदेशी कंपनियां देश में विमान बनाएंगी। तो ये तमाम चीजें और ये अहम फैसला सरकार का, जिससे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आप बिहार चुनाव की हार से जोड़कर ना देखें।